to the students and everyone those who are watching this video. I am your teacher from Shioki Group of Institutions and I welcome you all in the online classes. The students, this is your science period and as we know we have completed this chapter in your audio classes. So students, this was a record session of your audio classes. So here chapter number 6, solid, liquid and gases. As we know that we have already introduced about, I have already introduced about solid, liquid and gases in the last video class. So here, after that, you have to open your book page number 62 for further headings. Okay, chapter number 6, solid, liquid and gases, page number 62. Okay, let me first record the previous class matter. What is matter? Anything that occupies a space and have mass is known as matter. कुछ भी अगर स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके अंदर वेट है तो वो हमारा मैटर है. ओके, एंड देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. और ये हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? ये हम मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट की वजह से रिकॉग्नाइज करते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है. ओके, कम टू द नेक्स्ट हेडिंग, सॉल्यूशन. व्हाट इज सॉल्यूशन? Solute plus solvent is equal to solution. This one is the simple formula. Solute plus solvent is equal to solution. Okay. Solid, जब हम किसी भी solid चीज को liquid चीज में mix करते हैं तो जो हमारा mixture बनता है उसे हम solution कहते हैं. Just like when we add sugar into the water. Sugar is a solute, water is a solvent, and when we create a mixture of solute plus solvent, then we get solution. Okay, and जरूरी नहीं हमारी सारी चीजें किसी भी सॉल्वेंट में completely mix हो जाए. तो जो चीजें हमारी mix हो जाती हैं that are soluble, and जो हमारे सॉल्वेंट में mix नहीं हो पाती हैं that are insoluble. Just like soluble substances are salt, sugar, these can easily mix into the solvent, so these are soluble. और insoluble कौन सी है? Sand, mud particles, these are the insoluble impurities. तो अगर soluble है that's okay कि पानी सही रहेगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं करेगा, but insoluble impurities may be harm us. और insoluble impurities को separate करने के लिए water से यहाँ पे कुछ methods दिए गए हैं. Here are the methods of separating impurities, soluble impurities and insoluble impurities. Got it? And here the method for separating impurity. First one is sedimentation and decantation. Sediment and decantation are the one process only. Okay, complete processes sedimentation and decantation. Okay, let me tell you that when you take a beaker, okay, beaker है ये हमारा, इसमें पानी है. ओके, पानी, नॉर्मल वाटर, और यहाँ पर हमारी इसमें सैंड ढूंढी हुई है, सैंड. सो जो सेडिमेंट प्रोसेस इज लाइक जब आप सॉल्युबल इम्प्योरिटी मींस इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज आपके पानी में ऐड होती हैं तो आप उसको कुछ देर के लिए रख दो. जस्ट स्टे लाइक दैट फॉर सेवरल आवर्स. आफ्टर सम टाइम all the insoluble impurities will settle down at the bottom of the beaker or any of the vessel, and this one is process is called sedimentation. सिर्फ आपका insoluble impurities का settle down होना ही sedimentation process कहलाता है. And after that, when you pour the upper remaining water after settling down of the impurities is known as decantation. Okay, let me tell you in a clear words कि जब आप पानी में घुली insoluble impurities को settle down होने के लिए रख देते हो और आपकी insoluble impurities सारी vessel के bottom में settle down हो जाती हैं तो इसे हम sedimentation process कहते हैं. और जब हम उस ऊपर clear water को जो भी हमारा होता है उसे हम अलग vessel में निकालते हैं तो इसे हम decantation process कहते हैं. Okay, so here we have completed first method. Now come to the second method is filtration. Before start
लगाते हैं, ओके, फिल्टर पेपर। और फिर जो भी इम्प्योरिटीज वाला वाटर होता है या फिर सॉल्वेंट होता है, सोल्यूशन होता है, उसे हम यहाँ से पास आउट कराते हैं। तो जो यहाँ से क्लियर वाटर आता है, ओके, जो यहाँ से हमें बिना इम्प्योरिटीज का वो पानी मिलता है, ओके, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं हमारी इम्प्योरिटीज तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत जम्स रह जाते हैं, ओके। तो जो यहाँ पे हमें पानी मिलता है वो क्लियर होता है, एंड दिस वाटर इज मच क्लियर देन द processed by sedimentation and decantation, okay. So this one is your filtration process. Now come to the boiling process. Boiling process is the best process to separate impurities from your water. Boiling process is a normal process that you can do at your homes also in a normal way. बस आपको पानी लेना है जिसमें आपको लगे इम्प्योरिटीज है और उसे आपको गर्म करने के लिए रख देना है 100 डिग्री सेल्सियस में। जब वो बॉयल हो जाए, आफ्टर सम टाइम जस्ट मेक इट कूल डाउन और फिर आप उसे पी सकते हो। इसमें आपके ना जम्स रहेंगे ना इम्प्योरिटीज रहेंगी, ओके। सो दिस वन इज द बेस्ट प्रोसेस फ्रॉम ऑल द मेथड्स दैट हेल्प्स टू सेपरेट इम्प्योरिटीज, ओके। लास्ट वन, क्लोरीनेशन प्रोसेस। क्लोरीनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि क्लोरीन एक सब्सटेंस होता है, केमिकल सब्सटेंस मींस मेटल होता है, Cl। क्लोरीन का ये एटॉमिक सिंबल, ओके। क्लोरीन सब्सटेंस होता है, एटॉमिक मेटल। इसे हम पानी में ऐड कर देते हैं तो जो भी हमारी इम्प्योरिटीज होती है वो सब क्लोरीन अपने अंदर अटैक कर लेता है और पानी को प्योर कर देता है, ओके। जस्ट लाइक एक्वागार्ड और आरओ, इसमें भी हमारा क्लोरीन प्लेट ही लगी होती है जिसकी वजह से पानी प्योरीफाई होता है, ओके। सो these are all the methods of separating impurities. Now come to the composition of air. As we know that air is always surrounds us, okay, and it is the mixture of gases. कौन सी गैसेस? एयर का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें 78% हमारी नाइट्रोजन होती है, 21% हमारी ऑक्सीजन होती है। एज वी नो दैट ऑक्सीजन इज द मेन इंपॉर्टेंट गैस फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, ओके। वी आर लाइव जस्ट बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन, ओके। और नाइट्रोजन हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, ह्यूमन बीइंग्स डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं। सबसे पहले प्लांट्स लेते हैं नाइट्रोजन सॉइल से, उसके बाद प्लांट से एनिमल्स लेते हैं, और मे भी हम प्लांट से या फिर एनिमल्स के थ्रू, मीट या फिर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के थ्रू ह्यूमन बीइंग्स में आते हैं, ओके। एंड 1% अदर गैसेस, 1% अदर गैसेस कौन सी हैं? उसमें आती है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन एंड एक्सेट्रा अदर गैसेस, ओके। ऑर्गन गैसेस जो होती है वो हमारे ट्यूबुलर बल्ब्स में यूज होती है, ओके, इनफ्लोरेसेंट ट्यूब्स में यूज होती है। तो दीज आर द गैसेस। और कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि प्लांट्स इनटेक करते हैं उनकी रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ओके। सो कंपोजिशन ऑफ एयर। नाउ कम टू द लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज ये हमारी हीटिंग और कूलिंग के बीच का जो डिफरेंस है लैंड और सी में होता है, वही हमारा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज है। लैंड ब्रीज हमारी नाइट में आकर होती है, सी ब्रीज हमारी डे में आकर होती है, ओके। और सी ब्रीज में होता है कि जो हमारी विंड होती है ये सी टू लैंड की तरफ चलती है, ओके। और इसमें क्या होता है ड्यूरिंग द डे, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट द सी ब्रीज। ये डे में होती है और ये नाइट में होती है। इसमें विंड हमारी सी टू लैंड जाती है और इसमें लैंड टू सी। अब डे के टाइम क्या होता है? डे के टाइम क्या होता है, लैंड होती है वो जल्दी हीट अप हो जाती है और पानी जो होता है वो देर में हीट होता है, मीन्स देर में गर्म होता है, विच इन टर्न हीट्स अबव एयर द लैंड। जो लैंड के ऊपर की एयर होती है फिर वो भी गर्म होगी, जब नीचे की लैंड जल्दी गर्म हो जाती है तो वहाँ की एयर भी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी गर्म। और जो पानी होता है डे टाइम वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, तो उसके ऊपर की जो एयर होती है वो हल्की हल्की ठंडी रहती है, गॉट इट। उसके बाद जब रात होती है, ओके, तो
ओके, तो जो दिन के टाइम पे जो सी से ठंडी हवा लैंड की तरफ चलती है इसे ही हम सी ब्रीज कहते हैं, और रात के टाइम में जो ठंडी हवा हमारी लैंड से सी की तरफ चलती है उसे ही हम लैंड ब्रीज कहते हैं। Got it? Okay. So we have completed about land breeze and sea breeze. Now coming to ventilation. Ventilation is a simple process that अगर आपका कोई रूम है, मे भी वहाँ बहुत ज़्यादा सनलाइट आ रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, मॉइस्चर है, ओके, तो जब आपके अंदर की रूम के अंदर का टेम्परेचर को कम करने के लिए, मीन्स रूम के अंदर की जो गर्म हवा है उसे बाहर करने के लिए हम एक एग्जॉस्ट फैन या फिर प्रॉपर विंडो डोर लगाते हैं, जिसकी वजह से बाहर की कूल एयर अंदर आ सके और अंदर की गर्म एयर बाहर जा सके। इसी प्रोसेस को हम वेंटिलेशन प्रोसेस कहते हैं। ओके, सो हियर अब आप ये सोचोगे कि जो एग्जॉस्ट फैन होते हैं या फिर वेंटिलेटर्स होते हैं ये हमारे ऊपर रूफ के पास ही क्यों रखते हैं? क्योंकि जब आपकी रूम की गर्म हवा होगी, मीन्स रूम के अंदर की जो गर्म हवा या फिर हीटेड एयर होगी वो नीचे रहती है आपके फ्लोर पे, और जब वो गर्म होती है तो वो लाइट हो जाती है, मीन हवा हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उठती है। तो अगर हम वेंटिलेटर नीचे लगाएंगे तो हवा तो ऊपर उठ रही है, तो वेंटिलेशन से कैसे बाहर हो पाएगी वो? ओके, और वेंटिलेटर्स का वर्क यही होता है कि बाहर की कूलर एयर को अंदर लेके अंदर की गर्म एयर को बाहर करना। गॉट इट? सो यार इसीलिए हम वेंटिलेटर्स जो भी होते हैं वो हम ऊपर लगाते हैं ताकि नीचे की जब गर्म हवा ड्राइज अप होकर ऊपर जाए तो वो वेंटिलेटर से बाहर हो सके और बाहर की कूलर एयर अंदर आ सके। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड वेंटिलेशन। नाउ मानसून ब्रीजेस। ये मानसून ब्रीजेस क्या है? ये हमारी सीजनल विंड्स है, जैसे कि जून से सितंबर के बीच में हमारी मानसून ब्रीज चलती है, मीन्स मानसून सीजन होता है। ओके, और ये हमारी सीजनल विंड्स हैं जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से एंटर होती है हमारे इंडिया में। ओके, और कहाँ से आती है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है। कहाँ से एंटर होती है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंटर होती है और कहाँ से आती है? साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ओके, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से आती है और ये हमारी सीजनल विंड्स है। पर ये जो मानसून ब्रीजेस है ये ब्लोज फ्रॉम कोल्ड टू वार्म एरियाज। ओके, ठंडी जगह से आती है वार्म प्लेसेस में और ये हैवी मॉनसून लेके आती हैं। जब ये वार्म प्लेसेस में आती हैं तो ये बॉइल्ड अप हो जाती है इसकी एयर और ये हैवी रेन के थ्रू हमारी जमीन पर गिरती है एज अ रेन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर दैट मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स, 3 states of matter, solid, liquid and gas, then solution and 2 types of impurities, soluble and insoluble, methods of separating impurities, composition of air, land breeze and sea breeze, ventilation and monsoon breezes. This is all about our chapter that we have completed, and the written note we will look in our next class. So students, that's all for today, sorry, and hope you have a great day. Thank you so much.